Hello everyone, welcome to this session. My name is Somajit Goswami. I am the founder of Competition Crusade Classes, and in today's video I am going to explain the daily practice problem sheets that I am already uploading in the Telegram community. Now understand this thing very clearly. This one snippet that is right in front of you, this is one of the PDFs that I have recently uploaded. Now I want to explain what this PDF entails. Now, as I have already promised a few months ago that I'll be giving out some content for all of you guys, and I require a lot of time to curate content, because you see I am a one-man army. I don't have a large team, but it is just my passion that I want to do this, so I'm doing it. Now let me explain everything that there is inside this PDF. And also one more thing before I actually start with the session is that this session will be in a bilingual manner, so Hindi English both will be used. So yeah, that is about that. The very first thing that really haunts the student, I mean somebody who's a beginner, is कि उनको लगता है यार हमारा जो vocabulary है उसी की वजह से हमारे RC में नंबर कम आ रहे हैं. हालांकि it is a complete hoax. Comprehension is not dependent on vocabulary. However, vocabulary can definitely help you. But then again, I mean, what type of vocabulary can we do? हम कहाँ से करें, कुछ समझ में नहीं आता. मैं आपको सीधी सीधी बात बता देता हूँ. There is a book called Baron 800. It's basically a book which is designed for GRE aspirants, because GRE has a section of vocabulary. So Baron 800 basically has 800 vocabulary words. Okay, so if you do around, let's say 500 words also from that Baron's list, you will be done. And that is exactly where we have picked up these words. So these words are not taken from any random source. Okay, तो वो तो हुआ इन वर्ड्स के बारे में. तो आपको डेली में वर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है. हैविंग सेड दैट, उसके मीनिंग, उनके यूजेज मिल जाएंगे आपको. 10 to 20 सेकेंड्स एट दी मैक्स 30 सेकेंड्स देने हैं. इनको देखना है, समझना है कि अच्छा ये वर्ड है, इसका यूजेज देख लिया, आगे बढ़ना है, ठीक है. व्हाट एल्स डज दिस पीडीएफ कंटेन्स? द डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट कंटेन्स. दिस शीट कंटेन्स रीडिंग लिंक्स. नाउ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो अभी बच्चों को आती है, ठीक है, बच्चों बोलना सही नहीं होगा, बच्चे बूढ़े जो भी अप्लाई करते हैं टेस्ट के लिए, उनको आती है कि सर रीडिंग के लिंक अभी खोजना बड़ा डिफिकल्ट हो गया है. अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दें, हम अपना क्वांट सॉल्व करें, DILR सॉल्व करें, VARC के सॉल्व करें, सेक्शन टेस्ट दें, मॉक टेस्ट दें, या फिर ये RC के आर्टिकल लिंक्स खोजते बैठे. हम हैं आपके लिए, हमने आपके लिए आर्टिकल लिंक्स ऑलरेडी पकड़ लिए हैं. आर्टिकल्स को हमने इस तरह से एम्बेड किया है पीडीएफ में कि आपको कुछ नहीं करना है. यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दैट लिंक, एंड द मोमेंट यू क्लिक दैट लिंक यू विल बी रिडायरेक्टेड टू द वेबसाइट. आप वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो. एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू विद अ सिंपल summary. For example, if you want to read something that interests you, beforehand you already know कि अच्छा summary पढ़ लिया, so summary is interesting, so maybe now I want to read the long form essay. So this is how also you can make use of these article links. And at the max you will get somewhere around 4 to 5 article links. My recommendation is that you should at least read 2 to 3 articles on a daily basis. If you can stretch it up to 5 articles without compromising on the practice that you're doing on for quantitative abilities, DILR, and practicing RCs, that would be like anything. Okay, but at least 2 to 3 is enough, and that too you don't have to read a 3000-4000 words long essay or something that EON has. Okay, again इसीलिए आप देखोगे कि बहुत सारे इसमें जो भी आर्टिकल्स आपको मिलेंगे वो सिर्फ EON सेंट्रिक नहीं है. बहुत सारे बच्चों को ये भी एक गलतफहमी रहती है कि हमें सिर्फ EON, किसी गुरुजी ने बोल दिया कि बस EON पढ़ लो, फिलोसॉफी पढ़ लो. अरे भाई, फिलोसॉफी का टेस्ट नहीं लिख रहे हो, अगर इतना ही इंटरेस्ट है फिलोसॉफी पढ़ने में तो जाइए एक बार फिर से ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए, आर्ट्स लेकर के, और फिलोसॉफी सब्जेक्ट को ले लीजिए, ठीक है. यू आर नॉट डूइंग ऑल दैट नॉनसेंस, राइट. यू आर अपीयरिंग फॉर अ टेस्ट टू क्लियर दैट टेस्ट टू गेट इनसाइड द IIMs. तो ये चीज क्लियर होना चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और क्या है इस पीडीएफ के अंदर. There is minimum one RC passage also. So there will be, as you can see over there, let me zoom in a bit. So this is a RC passage. This passage will be based from all the article links that are there. Okay, मतलब based होगा, ऐसा नहीं बोल रहे कि उसी का हम लोग निकाल करके उसी को RC बना रहे, क्योंकि उसमें मेरा भी बहुत फालतू का टाइम वेस्ट होगा, ठीक है. तो वैसा तो हम नहीं कर रहे हैं. हमने क्या किया है कि हमने उसी आर्टिकल्स को जिनको आपने पढ़ा है उन्हीं पे बेस्ड एक RC आपको मिलेगा. एंड दिस RC विल कंटेन सम क्वेश्चंस
For example, this particular RC has contained 7 questions. Are you supposed to solve 7 questions? But sir, CAT में तो 7 questions नहीं आता है. Why are you? See, CAT में क्या आता है नहीं आता, डोंट थिंक अबाउट इट एट दिस प्रेजेंट मोमेंट. व्हाट यू शुड बी सॉल्विंग इज, अगर आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 4 क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ जाइए. ठीक है. अब आते हैं द सिंगल मोस्ट ड्रेडेड सेक्शन इन आवर प्रिपरेशन विच इज क्वांटिटेटिव एबिलिटीज. तो क्वांटिटेटिव एबिलिटीज के लिए क्या है हमारे पास, या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए क्या है हमारे पास. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए हमारे पास हमने कुछ क्वेश्चंस पकड़ के रखे हैं. फॉर एग्जांपल हमने जितने क्वेश्चन आपको कैट में पूछे जाते हैं, फॉर एग्जांपल कैट में 22 क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो आपको यहाँ पे 12 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे. ठीक है. तो आपको 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं अक्रॉस ऑल जॉनर्स. तो अभी तक के हम ये चीज मान सकते हैं, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने अपना आपने अपना प्रिपरेशन मोर और लेस कंप्लीट कर लिया है. ठीक है. तो अगर आपने अपना जो प्रिपरेशन उसको मोर और लेस कंप्लीट कर लिया है तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो. नहीं भी कंप्लीट किया है तो कोई बात नहीं है, आप लोग कहीं ना कहीं से तो कंप्लीट कर ही रहे होगा, किसी ना किसी बुक को तो फॉलो कर ही रहे होगा. इन क्वेश्चंस को आप मेरे साथ सॉल्व करिएगा. ठीक है. इंटरेस्टिंग चीज, इन पीडीएफ्स में आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे, यहां पे आपको सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे. देयर इज अ रीजन फॉर मी डूइंग इट. आप लोग अगर थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे तो आप लोग को मिल भी जाएगा, बट मैं स्पेसिफिकली इसलिए नहीं दे रहा हूं इनके आंसर्स या सॉल्यूशंस, क्योंकि मैं इनको सॉल्व करूंगा वीडियोस के फॉर्म में. ठीक है. तो वीडियो सॉल्यूशंस के फॉर्म में इनको सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा. और कभी कभी अगर मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं होगा, अगर मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता, जैसे कि आप लोग देख सकते होगे कि फेसबुक लाइव हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है. ठीक है. तो जो भी आप लोग फेसबुक में हमारे साथ नहीं जुड़े हो, जल्दी से फेसबुक में हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम लोग लाइव सेशंस कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर. ठीक है. थोड़े बहुत अभी डेमोन्स्ट्रेशन चल रहे हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ओबीएस को देखना पड़ता है कि ओबीएस कितना पावरफुल है या नहीं है, क्योंकि थोड़ा मुझे भी इस चीज को समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है. एनीवेज, 10 क्वेश्चन है, आराम से इनमें से 7-8 क्वेश्चन भी अगर सॉल्व कर लिया कोई दिक्कत नहीं है. आंसर्स अगर सही है नहीं है उनके लिए वीडियो बनेंगे, क्रिस्प सिंपल शॉर्ट एंड सिंपल वीडियोस बनेंगे. 2 मिनट 3 मिनट के आसपास में खत्म हो जाएगा. और 2-3 मिनट वाला वीडियो को भी अगर 1.5x के स्पीड में अगर आप देख सकते हैं तो फिर मुझे लगता है कि 1 मिनट में आपका वीडियो ओवर हो जाएगा. और अगर कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि यार इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझना चाहिए, तो फिर आप उसको यूजुअल स्पीड पे देखेंगे. यही आपका ड्रिल है. ओके, बस इतना ही था. और तो नहीं, DILR भी है हमारे पास. ठीक है. एक सिंगल पीडीएफ के अंदर आपको रीडिंग लिंक्स मिल रहे हैं, आपको आरसी पैसेज मिल रहे हैं, आपको क्वांट्स के प्रॉब्लम मिल रहे हैं, आपको एक DILR केसलेट मिल रहा है, आपको वोकैबुलरी मिल रहा है. और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए. और फ्री में आपको ये सब मिल रहा है. थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो. ठीक है. एनीवेज, तो एक DILR केसलेट भी है. और कुछ बच्चों को ये चीज सवाल अभी रहेगा कि यार सर, लेकिन आप एक चीज हमें बताइए कि क्या ये जो सेट है, क्या ये कैट लेवल है, क्या ये, देखो कैट लेवल है नहीं है ये तो हमें नहीं पता, और कैट लेवल क्या है ये कैट वालों को भी नहीं पता. इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि ये मॉक लेवल है. ठीक है. जो भी मॉक टेस्ट आप लोग करियर लॉन्चर के एम कैट्स या फिर सिम कैट, आप जो भी लिखते हो मॉक कैट्स, तो उनके लेवल का ये है. ठीक है. और इसको भी डिटेल्ड में सोल्यूशन, मैं इसका भी सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा वीडियो के फॉर्म में. ठीक है. थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, और अगर मैं नहीं दे पा रहा हूं वीडियो तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसका इस DILR का मैं एटलीस्ट आपको सोल्यूशन और स्कीमेटिक जो उसका रिप्रेजेंटेशन है वो प्रोवाइड कर दूं. ठीक है. ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग चाहो तो ये कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई ज्यादा कुछ है नहीं. तो बस इतना ही है इस पीडीएफ में. लेकिन मैं ये बोलते हुए मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि बस इतना ही है, क्योंकि काफी कुछ मैं आपको दे चुका हूं. एक पीडीएफ के अंदर अगर आप यहां देख सकते हो तो टोटल 14 पेजेस हैं. और इस एक पर्टिकुलर पीडीएफ को अगर आप चाहो तो 2 से 3 दिन तक में आप इसको सॉल्व कर सकते हो. मैं आपको बोल रहा हूं कि इसे आप ब्लेंड करिए अपने प्रिपरेशन में, जो भी आप अभी कर रहे हो. मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप इस पीडीएफ को ज्यादा महत्व दीजिए और बाकियों को मत दीजिए. एट दिस पॉइंट इन टाइम आपको करना यह है कि आपको सारी चीजों को उतना ही इक्वल इंपॉर्टेंस देना है. आपके मॉक टेकिंग को भी आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, रिविजन को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देना है. और अगर ये रिविजन नहीं है तो फिर क्या है. ठीक है. सेल्फ स्टडी जो लोग कर रहे हैं, या फिर जिनको, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कि यार जिन्होंने मॉक्स ही ले रखा है, जिन्होंने कोचिंग वगैरह लिया नहीं है, उनके लिए इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी और कुछ हो नहीं सकता है. इस तरह के कितने पीडीएफ आएंगे, सीधा सीधी इस पे आते हैं कि भाई सर आपने एक बना करके बड़ा इसमें मेहनत किया है, इस पे कितने आप पीडीएफ बनाओगे इस तरह के. तो मैं आपको बता दूं, इसके मिनिमम भी अगर बात करें तो 100 पीडीएफ अवेलेबल हैं. अब वो 100 अपलोड होते हैं या नहीं है वो डिपेंड करता है कि हमें रिस्पांस किस तरह का मिलता है. लेकिन मैं आपको भी स्निपेट दिखा के क्या ही फायदा, मतलब ये सब दिखाने से कोई फायदा नहीं है. तो जो पीडीएफ्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे, सॉल्यूशंस आपको वीडियोस के फॉर्म में मिलते रहेंगे. आप लोगों से बस हाथ जोड़ के यही मेरा ये एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए,
फेसबुक के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर सेशंस को देखिए। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए हमारे एंड पे तो उसके ऊपर भी आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, और मैं फाइनली बस एक चीज बोल करके कंक्लूड करना चाहता हूं कि ये सब करने में काफी टाइम जाता है। किसी को ये चीज फील हो सकता है कि शायद ये सब आप फ्री में कर रहे हो तो यार इसमें तो कोई टाइम ही नहीं लगता होगा, दिस इज वेरी इजी। नो, इट इज नॉट दैट इजी, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए, ठीक है। सो दैट इज इट गाइस, आई मीन इस वीडियो में बस इतना ही। आगे देखते हैं, इनको सॉल्व करने वाले वीडियोस हम और अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू।